Good morning, dear friends. Good morning. Good morning, children. Good morning. So far, we have discussed very important lessons of Indian economics. That is, first lesson was on the eve of independence, and second lesson focused on the planning. In these two lessons, we tried to understand uh, to what level Britishers left us, that is, the economically backward situation, whether it is a agriculture sector or whether it is a infrastructure, whether it is a foreign trade, or whether it is a demographic social issues, educational sector. Everywhere there was an impact of British rule, foreign rule, British rule on India, and India was not able to give two times bread, that is, a food sufficiency was not there, agriculture produce were less. In that situation, India got independence. After independence, lot of problems again. The refugees from Bangladesh and uh, Pakistan, they were forced to migrate to India, and as a result of that, India had a huge influx of population, and there was a further uh, scarcity of food, shelter, and clothes. In that situations, India thought to have a plan. India adopted the mixed economy. Mixed economy is the economic system in which there is a co-presence of a private sector as well as a public sector. मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी रिप्रेजेंटेड बाय market forces, supply and demand. Prices are determined by supply and demand. They are the tools of the market. Socialistic system, there was a pattern of price determination, centralized planning commissions at a central level, top level, and prices are determined for the welfare of the people. But ultimately, throughout the plans, we have seen the plans focused on different aspects. I will provide to you soon. इस क्लास के बाद मैं लिस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा. तो हर प्लान में हमने अलग अलग टारगेट रखे. We have given the priorities, and these priorities are based on the trial and error method. Whatever the lacunas were there, that lacunas were tried to focus. Objectives were made during the 5-year plans, long term objectives, short term objectives, and these objectives focus to eradicate those issues, targeted issues. Getting your point? Am I audible, dear students? इसके बाद हमने चर्चा किया, आपको बताया कि कैसे हम याद रखेंगे कि कौन सा प्लान का पीरियड क्या था. फिर इसमें हमने आपको बताया कि प्लान हॉलीडेज अब बस याद रख लो. जिसमें 5 ईयर प्लान्स नहीं बने उसको हम प्लान हॉलीडे कहते हैं. उसमें एनुअल प्लान्स बने. जैसे मैंने आपको बताया कि 66 टू 69, 79 टू 80, 90 टू 92. ठीक है, 90 से 92. अगर इन पीरियड्स को बस याद रख लो जिसमें 1 ईयर के प्लान्स बने, तो बाकी आप प्लान्स को फिट कर सकते हो. हमारा प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950. 51 से 56 हमारा फर्स्ट प्लान, और लास्ट प्लान हमारा 12th प्लान था, 2017 तक. तो ये हमारा प्लानिंग का था, जिसमें हमने हर एक प्लान में अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए, जिसकी हम चर्चा और आगे के लेसन में चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ेंगे उसमें इंटर करेंगे, जिसको हमको पढ़ना है, पॉवर्टी वगैरह, तो फिर हम वहाँ उसकी चर्चा करेंगे. तो अब इस तरीके से हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दिया फर्स्ट प्लान में, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह 1966 मिड ऑफ 70s में हमने देखा. ग्रीन रेवोल्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले. दो इट वॉज स्टार्टेड एज ए टारगेटेड प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, 5 क्रॉप्स 5 एरियाज, और ईच क्रॉप वॉज असाइंड सर्टन एरियाज विच वर सुटेबल फॉर सर्टन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. जैसे पंजाब और हरियाणा को गेहूं के लिए चूज़ किया गया,
वेस्ट बंगाल को राइस के लिए चूज़ किया गया था, रागी के लिए कर्नाटका रीजन्स, दलहन के लिए मध्य प्रदेश का एरिया। तो ऐसे करके पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको स्टार्ट किया गया, बट अल्टीमेटली इट गॉट सक्सेस इन पंजाब एंड हरियाणा, एंड द रीज़न इज दैट कि enough money was given to these areas, and these areas were people are very entrepreneur, और जब सुविधाएं दी गई और साथ साथ लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप उसमें लगा, क्योंकि पहले से भी लोग थोड़े से कंपेरेटिवली दे आर इन बेटर पोजीशन, हार्ड वर्किंग भी थे, भाग के आए थे जब रिफ्यूजीज़ के रूप में। तो एक जब आदमी रिफ्यूजीज़ के रूप में जब आया तो उसमें एक एंटरप्रेन्योरशिप ये भी होता है कि हमको अपने आप को प्रूव करना है, मेहनत करना है, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, नेक्स्ट जनरेशन को कुछ दे पाएंगे। तो मल्टीपल कॉजेज, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़, लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप नेचर, हार्ड वर्क को गुरु कह लो कि गुरु की परंपरा, गुरु गोविंद सिंह जो हमेशा कहते थे हार्ड वर्क, जितने भी गुरु है यही शिक्षा देते रहे कि हार्ड वर्क करना चाहिए। इसलिए आज भी देखो तो एक भी हमारा सिख भाई जो है भीख मांगते हुए दिखाई नहीं देता है। तो एक मतलब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो, मैं एक इकोनॉमिक फैक्टर की भी हो सकता है, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकता है, एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सोशल फैक्टर भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आज मैंने एक स्टेटस अपना लगाया और मैं बहुत प्रभावित हुआ। एक लेडी जो सफाई कर्मचारी थी, स्वीपिंग करती थी, स्वीपिंग समझ रहे हो ना, जो ड्रेनेज वगैरह को साफ करने वाला। मेरी बात सुन रहे हो बेटा? हेलो चिल्ड्रन, एम आई ऑडियबल? हाँ, तो मैंने स्टेटस पर लगाया, जरा ध्यान देखना उसको। तो मैंने लगाया कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ इस स्टोरी से कि सफाई करने वाली कर्मचारी दलित वर्ग की, और उसने सफाई करते करते उसी समय, जब भी उसको समय मिला, जब भी वो रेस्ट करते थे तो किताब हमेशा अपने पास रखती थी और किताब खोल के बैठती थी, और आज के डेट में वो एसडीएम बन गई। पीसीएस क्वालिफाई किया उसने और एसडीएम बन गई। आप सोच लो, तो वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। पढ़ाई का मतलब यही है, जुनून अगर हो आपके अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो ज़िंदगी में। केवल जुनून चाहिए आदमी को आगे बढ़ने के लिए, फायर होना चाहिए आदमी को। बच्चे जब ब्लेम करते, इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ। मैं ये देखा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने देखा है, समझा है, और मैं बहुत बड़ा, मैं ईश्वर का आशीर्वाद कह लो, मैं इस प्रोफेशन में हूँ और इस प्रोफेशन की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशन ही आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को बना सकता है, बहुत सारे इंजीनियर को बना सकता है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकता है। तो उस स्टोरीज ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, इसलिए मैंने इसको स्टेटस के ऊपर लाया। खैर, अब आइए आप टॉपिक पर, एक बार दोबारा हम टॉपिक पर आते हैं, और हम बात कर रहे थे प्लान की, ठीक है। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन तक एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने देखा, रिफॉर्म किए, और उसका इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में दिखा, और पंजाब एंड हरियाणा वर द मैक्सिमम बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। वो एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आए, और यही कारण है कि आज पंजाब और हरियाणा के किसानों की स्थिति देश के किसानों की स्थिति से बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये तो एग्रीकल्चर की बात। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में हमने बहुत सारे कानून बनाए, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज से लेकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से लेकर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर। उसमें बहुत सारे हर्डल्स को, आगे देखोगे कि हमने बहुत सारे हर्डल्स थे, उन हर्डल्स को दूर किया। टैरिफ्स को लेकर हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने टैरिफ्स रेट्स को उनके फेवरेबल बनाया, जहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की एंट्री नहीं हो। गेट पॉइंट? उसको बचाने के लिए हमने इन्फेंट इंडस्ट्री का आर्गूमेंट हमने दिया। तो इस तरीके से हमने इंडस्ट्रीज़ को भी प्रमोट करने का प्रयास किया। सिमिलरली ऑन द फॉरेन ट्रेड। सो ये हमारा प्लानिंग का एक पार्ट था। आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं कि हम डिज़ायर्ड लेवल तक हमने ग्रोथ नहीं कर पाए। हम अपने इकोनॉमी को वी वर अनेबल टू ग्रो आवर इकोनॉमी टू द लेवल वेयर इट शुड, जहाँ इसको होना चाहिए था, वेयर वी वर अनेबल टू पुट इट। तो फिर हमको क्या करना चाहिए था, और हमने तब उन स्थितियों में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया, नई औद्योगिक नीति को हमने स्टार्ट किया। अब परिस्थितियाँ क्या थी, पहले उसके बारे में विचार करें। क्या हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जो लॉन्च किया, मनमोहन सिंह हमारे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और नरसिम्हा राव, जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं कि नरसिम्हा राव
ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको इनिशिएट किया, और वो जानते थे कि एक कंजर्वेटिव इकोनॉमी से एक बिल्कुल यू टर्न लेके आना, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना चाहते हो, तो एक जो अपोजिशन है बहुत हल्ला कर सकता है। लेकिन उस समय अपोजिशन में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग थे जो कि अपने पर्सनल गेन से राष्ट्र का गेन ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी देते थे। तो नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में बैकडोर बात होती है, वार्ता होती है, और नरसिम्हा राव ने देश की स्थिति को बताया कि देश की स्थिति क्या है, बहुत ही खराब स्थिति है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे आपसे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको फ्री हैंड दिया कि नहीं, अपोजिशन के रूप में मैं आपको पूरा कोऑपरेशन दूंगा, और उसी का परिणाम था कि देश में हंगामा तो हुआ, हंगामा करने वाले लोग हुए, ट्रेड यूनियंस ने हंगामा किया, मजदूर संघों ने हंगामा किया, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, जब तक अपोजिशन का साथ मिलता है तब तक चीज़ें स्मूथ हो जाती है, टैकल हो जाती है। गेटिंग पॉइंट? तो आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या रीजन्स बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसको कहते हैं, और पॉपुलरली इट इज़ नोन एज एलपीजी। एलपीजी जब कहते हैं तो अगर आप 10th क्लास में होते, केमिस्ट्री क्लास में होते, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। आप इकोनॉमिक्स में की क्लास में है तो आप कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आज हम इस बात पर विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि ये एलपीजी की पॉलिसी जो हमने स्टार्ट किया, और इसको बहुत बड़ी बात कहा गया, बहुत बड़ी बात भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात कहा गया तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं था। ये कुछ कदम होते हैं कि हम जैसे बच्चे को ट्यूशन भेजना, एक मजबूरी होता है कि बच्चा पास नहीं हो रहा तब भेजा, और एक होता है कि बच्चा 90% लेकर आ रहा है और कैसे उसको 99 और 100% के काबिल बना दिया जा सके। तो दोनों की स्थिति में अंतर है, दोनों ट्यूशन ही है। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हेलो हेलो। यस सर। तो एलपीजी की जो पॉलिसी थी, द पॉलिसी ऑफ एलपीजी, वो उसी तरह था कि जैसे एक बच्चा फेल हो रहा हो और उसको ट्यूशन दिला रहे हैं हम, न कि एक बच्चा 90% लेकर आ रहा है उसको हम ट्यूशन दिला रहे हैं। तो एलपीजी की पॉलिसी का जो डिसीजन था, एक मजबूरी में लिया हुआ डिसीजन था। गेटिंग पॉइंट? इट वॉज नॉट आउट ऑफ चॉइस, बट इट वॉज आउट ऑफ कंपल्सन। ये आउट ऑफ कंपल्सन, मजबूरी में लिया हुआ डिसीजन था। ये कैसे था, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। अभी तक आप बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ चुके हो, अभी तक आप बजट पढ़ चुके हो, ठीक है, अभी तक आप इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हो कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स, ठीक है। अभी तक आप नेशनल इनकम के बारे में पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझने में आसानी होगी। तो रीजन्स बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सॉरी। पहला है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट ये क्या होता है? अभी तक आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था बजट वाले लेसन में, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देश में जो खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से का जो खर्चा है देश का, वो ज़्यादा है। कैसे? जो रेवेन्यू मिल रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब ये दोनों जो हैं, इससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को छोड़कर। मतलब फिजिकल डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए हम बोरोइंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट, आप बोरोइंग आप करोगे तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? व्हेन यू बोरो सर्टेन थिंग्स, आप बैंक से बोरो करते हो तो क्या करते हो? बैंक को वापस देते हो कि नहीं देते हो? चाहे होम लोन लो, चाहे पर्सनल लोन लो, कोई भी लोन लो, व्हीकल लोन लो, कुछ भी लो, तो आप जब पैसा लेते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको वापस करना पड़ता है। am I राइट? तो एक बर्डन बढ़ता है। आपके फादर ने लोन लिया, आपके ग्रैंडफादर ने लोन लिया, उसको कौन चुकाएगा? ठीक है, आपके पेरेंट्स को चुकाना पड़ेगा, बहुत लंबा लोन है तो।
पेरेंट्स ने लिया, अगर वो नहीं चुका पाते हैं तो कौन चुकाएगा, रिटर्न कौन करेगा, हु विल रीपे, आपको करना पड़ेगा। मतलब लोन लेना इट इज अ बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। आज की पिछली सरकारों ने जो लोन लिया उसकी भरपाई ये सरकार कर रही है। बहुत सारी चीज़ों की कीमतें वो कम नहीं कर पाएगी। पेट्रोलियम की कीमतों को कम करने के लिए पिछली सरकारों ने बॉन्ड दिए थे कंपनियों को, पेट्रोल कंपनियों को, मतलब 5 साल का 10 साल का बॉन्ड दिया होता। वो सारे बॉन्ड आज मैच्योर्ड हो रहे हैं और इस गवर्नमेंट को वो सारे मैच्योर्ड बॉन्ड का पैसा, मतलब आप सोच लो कि एक प्रकार का एफडी, कि जो एफडी है उनको दिया कि आपको मैं देता हूँ, उस समय कीमतें बढ़ जाती तो जनता विरोध करती, तो उस समय की गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो बॉन्ड दिया उनको कि 5 साल तक आप कीमतें अभी मत बढ़ाइए, आपको मैं बॉन्ड दे देता हूँ, वो अब सब मैच्योर्ड हो रहा है। तो आज की गवर्नमेंट को वो सब पे करना पड़ता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एवरी बोरोइंग इज अ बर्डन टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन। एम आई अंडरस्टैंडेबल? मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? निशांत, वर्षा, ठीक है। सो द गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू बोरो मनी फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट था तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कोई और सहारा नहीं था, बोरो करना था। लेकिन जो बोरो करेगा तो आपकी स्थिति को देखेगा ना बेटा। एक भिखारी, अ बेगर इज अप्रोचिंग टू द कैनरा बैंक, गिव मी 1 लाख रुपीज, will Canara Bank provide the loan of 1 lakh rupees to a beggar? Tell me. बोलो बेटा, Canara Bank will give loan to a beggar? Children, बोलो भाई, Canara Bank will give loan to the beggar? नो, रिस्पॉन्ड करो बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा जब आप लोन लेने जा रहे हो, तो व्हाट द इंटरनेशनल अथॉरिटीज, IMF हैव टू थिंक पेइंग कैपेसिटी। तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, दोज हु ready to give the loans to India, they want that certain changes must take place. भारत की इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आए, जिन चेंजेस को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब आप अपने इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बदलाव लाइए। आपने जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को एंट्री नहीं दी हुई है, आपने जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर को एक कंजर्वेटिव सेक्टर बनाया हुआ है, आप हर चीज़ पर सरकार का नियंत्रण चाहते हो, वो घाटे में जा रहा है, उसकी एफिशिएंसी नहीं है, वो केवल वेलफेयर के नाम पर केवल लोगों को नौकरी दे रहा है, फिर वहाँ स्ट्राइक और ये सब। तो आप बहुत सारे चेंजेस लाइए इकोनॉमी में। इन्होंने इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत पर प्रेशर बनाया और तब लोन देने के लिए तैयार हुए। तो पब्लिक डेब्ट बिकेम वेरी हाई, जो बोझ था सार्वजनिक ऋण का वो बहुत बड़ा हो गया। अ ह्यूज अमाउंट हैड टू बी पेड एज इंटरेस्ट एवरी ईयर। और जब आप लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, इट इज़ बट नेचुरल। सो ये आप फिजिकल डेफिसिट्स और उसके इम्पैक्ट को अभी आपने देखा, जो कि आप पहले फिजिकल डेफिसिट को देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा अनफेवरेबल हुआ। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होने का मतलब क्या हुआ कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हो रहा है, और एक्सपोर्ट कम हो रहा है मतलब इनफ्लो ऑफ मनी कम हो रहा है, मतलब एक्सपेंडिचर हमारे ज़्यादा हो रहे हैं और हमको रेवेन्यू कम मिल रहा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बड़ी खराब थी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बिकेम मच मोर देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिकेम वेरी लो। फॉरेन एक्सचेंज आप जब ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करोगे तो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, आपको अमेरिका से परचेज करना है तो आपको अमेरिकन डॉलर चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। आपको रसिया से परचेज करना है तो आपको रूबल चाहिए। आपको ईरान से परचेज करना है तो आपको दिनार चाहिए, ठीक है। तो आपको उस देश की करेंसी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा।
तो अब फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा, तो आपको अपने नीड्स के लिए पेट्रोलियम परचेज करना है, आपको परचेज करना है कि आप कैपिटल गुड्स को परचेज कर लें, आपको अपने देश के डिफेंस के लिए चीज़ों को परचेज करना है। तो ऐसी स्थिति में ये कैसे संभव था कि हम इतने बैलेंस ऑफ पेमेंट इतना इनफेवरेबल हो, हम काम कर पाए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब होगी। इसको समझने के लिए ऐसे सोचो कि महीने का लास्ट हो और पापा के पास 1000 रुपये बचे हों, और किसी की घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो, बेटे का बर्थडे हो, क्या होगा? पापा को लोन लेना पड़ेगा। वही स्थिति थी। और लोन देने वाला वो क्या कहता है कि मैं लोन तो नहीं दूंगा आपको, वाई आई शुड गिव लोन टू यू, you have to either you change your way of working, ठीक है? I want to help you children, but you have to change your way of talk, you have to change your behavior, you have to change your attitude. Are you getting my same kind of conditions? मेरी बात समझ में आ रही है बेटा चिल्ड्रन? समझ आ रही है? तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट होने की वजह से क्या हुआ कि आपको दूसरे कंट्री पर आपका जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ गया। द कंट्री वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मीट द इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर। इम्पोर्ट करने के लिए भारत के पास पैसे ही नहीं बच रहे थे। अब देखो, ये तो दोनों बड़ी ही खराब स्थिति थी भाई। इसके बाद इसी बीच में क्या होता है, गल्फ क्राइसिस हो जाती है, युद्ध हो जाता है गल्फ कंट्रीज में। और जहां पर तेल का हब है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, है ना, कतर, दोहा, ये सब जो है कंट्रीज जो है गल्फ कंट्रीज, जहाँ पर तेल का भंडार। आज हमारे प्रधानमंत्री सोलर एनर्जी पर जोर दे रहे हैं, लेकिन आज से ये 1991 की बात है, और उस 25 साल पहले की स्थिति के बारे में अगर आप सोचो तो 20-25 साल पहले ये इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट वॉज डिफरेंट कंडीशन, and the whole country was dependent on petroleum product for its survival, for its working. ट्रांसपोर्ट के लिए पेट्रोलियम की ज़रूरत थी, चाहे वो रेल का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटर एयरवेज हो, कुछ भी, हमको पेट्रोलियम की ज़रूरत थी। तो गल्फ क्राइसिस क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर वर्किंग इन द गल्फ कंट्रीज। पहला, दो तरह के क्राइसिस की हम यहाँ चर्चा करेंगे गल्फ क्राइसिस में। पहला है कि युद्ध हो जाना, जिससे पेट्रोलियम का उत्पादन पर असर हुआ और जिससे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ गई। यहाँ पहले दूसरे प्रॉब्लम पर चर्चा की गई है कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, जो वर्कर्स थे वहाँ काम करते थे, वो वहाँ चूँकि काम करते थे तो वहाँ से वो पैसा अपने होम कंट्रीज को भेजते थे रेमिटेंसेस के रूप में, ठीक है, अपने घर वालों को भेजते थे रेमिटेंसेस। तो वो जो भेजते थे उससे हमको क्या मिलता था? उससे हमको फॉरेन एक्सचेंज मिलता था। अब चूंकि वहाँ गल्फ में जो लड़ाइयाँ होने लगी तो वहाँ से लोग भाग आए, और भाग आए उसका परिणाम क्या हुआ कि वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज मिलता था वो बंद हो गया। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वॉज स्टॉप्ड। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो बेटा। हाँ, गल्फ क्राइसिस this point talks about two things. First thing, because of the war in the Gulf areas, है ना, जो इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह एरिया है ना, उसको गल्फ कंट्रीज, है ना, अदन की खाड़ी, है ना, अरेबियन सी से जब वेस्ट जाते हो तो ये सब गल्फ कंट्रीज का एरिया आता है। अगर पॉलिटिकल मैप अगर आप देखो तो इन एरियाज़ में क्या हुआ, लड़ाइयाँ हो गई, और इन लड़ाइयों की वजह से सद्दाम हुसैन उस समय थे वहाँ के राष्ट्रपति, और उस पर अमेरिका ने उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया, और कुवैत को अमेरिका का सपोर्ट था, अमेरिका ने अटैक कर दिया 24 देशों ने मिलकर, और उनकी सत्ता भी गई, और वहाँ पर उतने समय तक प्रोडक्शन भी नहीं हुआ। तो दो इम्पैक्ट हुआ। पहली बात, जहाँ लड़ाई होगी, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने जिस तरह का आतंक मचाया हुआ है, उसका परिणाम क्या हो रहा है कि वहाँ से सारे देशों के लोग वहाँ से भाग रहे हैं। आर गेटिंग पॉइंट? समझ रहे हो? ऐसी स्थिति, हाँ, वहाँ मतलब अफगानिस्तान में तो हम हेल्प कर रहे थे, अफगानिस्तान में तो कुछ है ही नहीं है, हाँ, वहाँ से कुछ मिलना नहीं है। तो अब वहाँ से जितने भी गल्फ कंट्रीज में लोग थे वो सारे लोग क्या हुए, काम करने वाले लोग भाग के आ गए इंडिया में वापस। तो इंडिया के वर्कर अगर कहीं भी बाहर काम करते तो वहाँ से वो उस देश की मुद्रा भेजते ना,
हाँ, वहाँ तो रुपया मिलेगा नहीं, वहाँ तो डॉलर या जो भी है वहाँ की मुद्रा वो वहाँ से आएगी। तो गल्फ कंट्री से जो मुद्रा थी, फॉरेन एक्सचेंज है हमारे लिए, वो हमारे पास आता था, वो आना बंद हो गया क्योंकि वहाँ लड़ाइयाँ हो गई, क्योंकि वो वहाँ थे ही नहीं, अब काम करने वाले थे ही नहीं। दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ कि वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ गई बहुत। ठीक है, अब पेट्रोलियम की कीमतें, और जानते हो कि पेट्रोलियम की ज़रूरत है हमको, तो पेट्रोलियम को आपको, आप में 10 रुपये का पेट्रोलियम आपको 2,000 रुपये में परचेज करोगे जब आप, तो आपकी इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, जैसे मान लो कि आप इसको ऐसे सोचो कि आपके पापा 10,000 रुपये कमाते हो और 1,800 रुपये स्कूल की फ़ीस देते हो। 1,800 की जगह अगर स्कूल की फ़ीस हो जाए 5,000, तो आपके पापा के पॉकेट पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सिंपल सी बात है कि हमने पेट्रोलियम का जो नॉर्मल जो प्राइसेस होता था उससे वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमको पेट्रोलियम की ज़रूरत तो थी, हर सेक्टर को ज़रूरत है पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट के बिना कोई काम ही नहीं होगा इकोनॉमी में। उसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे रिसोर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ गया। तो a large number of Indians were working in Gulf countries. The Iraq war affected them badly. Many of them returned to India, so the earnings from Gulf countries declined sharply. ठीक है, यहाँ पर केवल एक बात की चर्चा की गई है। ठीक है, हमने दोनों बातों की चर्चा कर दी यहाँ पर। चलिए अब आते हैं इन्फ्लेशन। सामान्य भाषा में इन्फ्लेशन को हम कहते हैं प्राइस राइज, कीमतों का बढ़ जाना। ठीक है, और कीमतें बहुत बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से कीमतें जब बढ़ जाएंगी तो जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप वाले लोग हैं, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसे आलू की कीमत 5 रुपये से 100 रुपये हो जाए, तो जिसकी आलू की कीमत 5 रुपये से अगर 100 रुपये हो जाए तो क्या होगा कि स्थिति बड़ी ख़राब हो जाएगी ना बेटा, जिसकी इनकम फिक्स्ड है। आर्गेनिक पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? The prices of essential goods increased sharply. This affected the poor and salaried people very badly. उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। पॉइंट, उनके ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। This affected the poor and salaried people very badly. Living standard of the people came down. Okay? आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, ये आवाज़ कट के आ रही है, थोड़ा सा मैं वो 1 मिनट में ब्रेक लूँगा। ओके, सो इन्फ्लेशन की मैं चर्चा कर रहा था। इन्फ्लेशन, तो प्राइसेस ऑफ इसेंशियल गुड्स इंक्रीज शार्पली। जो भी अति आवश्यक चीज़ें थीं, ठीक है, उन सारी चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई। द प्राइसेस इंक्रीज्ड, सोअरिंग प्राइसेस रिजल्टेड इनटू द पॉपुलर एजिटेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये किसी भी सरकार के लिए के अगेंस्ट में ये काम करता है। अगर चीज़ें बढ़ती जाएं, कीमतें बढ़ती जाएं, तो लोग क्या करते हैं, सड़कों पर लेके आते हैं ना। कभी देखा है अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ को सब सड़कों पर आके प्याज की कीमतों के बारे में बात करते हुए, पेट्रोलियम की कीमतों के बारे में, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में बात करते हुए, है ना। तो ये सब स्थिति जो होती है ना, ये सब हमको देखने को मिला कब? 1991 में, कि कीमतें बढ़ रही थी, फिस्कल डेफिसिट बहुत था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिला, मतलब वो 1991 का दौर ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, जिसको हमने कल कहा था कि दे आर वाइट एलिफेंट, वो सफ़ेद हाथी की तरह बनकर रह गई थी। मतलब दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के ग्रोथ में उनका जो योगदान होना चाहिए था, दैट वाज नॉट टेकिंग प्लेस। आर गेटिंग पॉइंट? सो मैनी ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बिकेम सिक यूनिट्स। वो बीमार उद्योग की तरह हो गई, मतलब घाटे में जा रही थी वो। ठीक है, इनएफिशिएंसी, कार्य की जो क्षमता थी, इनएफिशिएंट। ओके, तो वर्किंग जो कैपेसिटी थी वो अच्छा नहीं था। ठीक है, आपने बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के बारे में सुना होगा, जिसको
हमने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया प्रताप ऑटो ट्रैक्टर्स। गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी थी प्रतापगढ़ में। इट वॉज फेमस फॉर इट्स प्रताप ट्रैक्टर्स, बट लेटर ऑन these companies were sold to the private hands. Not only that, many other स्टील सेक्टर की कंपनीज थी उनको, ठीक है, पावर सेक्टर की कंपनी थी उनको. सो ऑल दोज कंपनीज वर सोल्ड इन द प्राइवेट हैंड्स एंड द रीजन इज दैट दे वर नॉट परफॉर्मिंग. If you have to survive in the market, you have to follow the market rules, and that was not taking place. Are you getting point? तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर. और इसके पीछे रीजन जो था ना बेटा, एक रीजन ये भी था कि ओवर स्टाफिंग हो रहा था इन पब्लिक सेक्टर में. हम एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे थे लेकिन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ही रेयरली हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बट देयर वाज अ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट. जबकि हम एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बहुत बड़ा फीचर माना जाता है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है. एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? Anybody can tell me what is disguised unemployment? देखो, generally disguised unemployment is find in the agriculture sector. It is found in the agriculture sector. जहाँ पर आप इसको ऐसे समझो कि मान लो कि एक पीस ऑफ लैंड है जहाँ पर 6 लोग मिलकर 60 केजी का प्रोडक्शन कर रहे हो. अब ये 7वां जो बंदा आता है, I am giving the employment to one more person, and the total people employed on that piece of land is 7 now. Earlier 6 persons were contributing 60 kg of wheat. Now 7th person, when he is employed, there is a no change in production, and still there is a 60 kg wheat is produced. It means that the person who got employment, one additional person, there is no contribution in production. And if this is the situation, if the person employed is not contributing in production, then that person is known as disguised unemployment. छिपी हुई बेरोजगारी. लगता तो है कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रोडक्शन में. यू गॉट अ पॉइंट? यू गॉट अ पॉइंट? बच्चे लोग समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही बेटा? हाँ बोल दो बेटा. रोल ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक. इंडिया गॉट अ लोन ऑफ $7 बिलियन फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक. लोन तो मिल गया. क्यों? क्योंकि उसने समझाया, बुझाया, बताया कि आप अपनी इकोनॉमी में बदलाव लाओगे तभी मैं लोन दूंगा. तो ये जो लोन मिला वो उस बदलाव लाने के लिए कहा, जिसको हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का नाम दिया, LPG का नाम दिया. दे इंस्ट्रक्टेड इंडिया, यहाँ लिख भी दिया है हमने, दे इंस्ट्रक्टेड इंडिया टू इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. और उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि अगर 90% लाना है, अनुराग जी, शुभांकिता, ठीक है, 100% लाना है, अर्जुन जी, निशान जी, आरुषि जी, आयुषी जी, तान्या जी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक्स पे जोर देना पड़ेगा, राइटिंग वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, याद करके की पॉइंट्स को बनाना पड़ेगा, जो भी फार्मूलेज हैं उसको एक नोटबुक बनाना पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है, डायग्राम्स को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जैसे IMF ने इंडिया को कहा कि आप अपने इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइए, स्टेबलाइजेशनल रिफॉर्म्स लाइए, टैक्स के रिफॉर्म्स लाइए, ठीक है. आर गेटिंग पॉइंट? उसी तरह आप इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको अपने वे ऑफ वर्किंग में बदलाव लाना पड़ेगा. गूगल क्लासरूम में वर्क को सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, वीडियो सर कहते हैं तो बनाना पड़ेगा. तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा और तभी रिजल्ट आएगा. समझ रहे हो? कॉपी पेस्ट से बचना पड़ेगा. 90% मार्क्स लाके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. चलिए, तो 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कहानी को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे. एंड इट इज़ नाउ ऑन योर स्क्रीन. 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स, ठीक है. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स या मेजर्स
जो कह लो, ठीक है। तो दो तरह के रिफॉर्म्स की चर्चा इसमें की जाती है। अब हम आते हैं एक एक करके इन सारे रिफॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको हमने 3 नामों से डिनोट किया और शॉर्ट में हम इसको कहते हैं एलपीजी, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट। अब आते हैं हम लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स के बारे में कि लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डी रेगुलेशन, रेगुलेशन, डी रेगुलेशन। समझ में आ रहा? रूट वर्ड्स को पकड़ो, उसको स्प्लिट करो, मीनिंग निकल के आएगा। डी रेगुलेशन, ओके। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट में बना दिया गया फॉरेक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, और ट्रेड पॉलिसी। आर गेटिंग पॉइंट। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। ये अगर आपके दिमाग में होगा तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखने में आपको सहायता मिलेगी, ओके। अब हम आते हैं, आके देखते हैं। द NEP कैन बी, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आपके, द NEP कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। देखेंगे हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स, ठीक है। दे आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, अंडरलाइन कर लो वर्ड को, शॉर्ट टर्म मेजर्स, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या है? शॉर्ट टर्म मेजर्स, क्षणिक, कुछ समय के लिए, कम अवधि के मेजर्स, जिसमें हम कहते हैं ना कि एग्जामिनेशन में पास करना है तो क्या करते हो, अब आप क्या करते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस करते हो कि नहीं करते हो? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? बोलो। जब एग्जामिनेशन एक सप्ताह बचा होता है उसमें पूरी किताब पढ़ते हो? नहीं ना। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हो गए कि आपको एग्जामिनेशन सामने दिखाई दे रहा है और उस एग्जामिनेशन को आप क्रैक करने के लिए आप क्या कर रहे हो कि आप शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हो। शॉर्ट टेक गाइड ले लिया, नोट्स ले लिया, कैप्सूल रीडिंग कर रहे हो। तो दे आर शॉर्ट टर्म मेजर्स टू इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए आप शॉर्ट टर्म मेजर्स कर रहे हो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है? शॉर्ट टर्म मेजर्स, ठीक है। और इस शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी शॉर्ट टर्म मेजर्स को लेने की ज़रूरत कि अगर आप शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लेते और फॉरेन एक्सचेंज को नहीं बढ़ाओगे तो फॉरेन से आपको परचेज करना है क्या? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। फॉरेन से आपको परचेज करना है क्या? कैपिटल गुड्स। वो कहाँ से लेकर आओगे? तो यू नीड टू हैव मिक्स ऑफ पॉलिसीज which thinks or which talks about long term measures as well as short term measures, ठीक है। हमको हर तरह की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। अगर इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस देन यू हैव टू हैव द मिक्स ऑफ पॉलिसीज इन योर इंडिविजुअल लाइफ। आर गेटिंग पॉइंट? जैसे हम 400 मीटर्स का रेस जब एथलीट दौड़ते हैं तो क्या करते हैं? शुरू से तेज़ दौड़ते हैं? नहीं, मिक्स ऑफ, वो पहले स्लो, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिया, फिर लास्ट में अपना जी जान लगा देते हैं। तो उसी तरह सक्सेस के लिए हमारी जो स्थिति थी, इकोनॉमिक कंडीशंस था, उसको हमको दो तरह से अप्रोच करने की ज़रूरत थी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, दे आर लॉन्ग टर्म मेजर्स। ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो कि एक दिन में नहीं हो सकता था, एक वीक में नहीं हो सकता था, एक मंथ में नहीं हो सकता था। इसको आपको कई सालों तक लेके जाना होगा। जैसे मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहो कि एक बिल्डिंग बना लें तो एक छोटी सी अपने घर की बिल्डिंग बनानी होती है तो महीनों लग जाते हैं। लगते हैं कि नहीं लगते भाई? बताओ, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है मेरी बात? आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। हाँ, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या थे? लॉन्ग टर्म मेजर्स थे, ठीक है। और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। और ये एलपीजी जो था वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मेजर्स था कि जहाँ पर जो सेक्टर, जैसे हमने पढ़ा कि जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा कर रहे थे तब हमने बात किया कि प्राइवेट सेक्टर्स वर गिवन द लिमिटेड एक्सेस। प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड एक्सेस दिया गया। प्राइवेट सेक्टर वॉज नॉट अलाउड टू
function in all areas. Certain areas were kept for the government sector, where the government, have you ever seen that is the Kerala railway or Tamil Nadu railway or Bihar railway or UP railway? It is always that Indian railway. Why it is so? Because Indian railway was in the public sector, government की company, the government, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑपरेटिंग, कोई प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं एंट्री दी गई. बट आफ्टर 1991 देयर इज ए ह्यूज चेंजेस और बहुत सारी पॉलिसीज में चेंजेस आया. आज हम इस गवर्नमेंट ने इस बात को एग्रेसिवली रियलाइज किया कि हम डर डर के रिफॉर्म्स क्यों कर रहे हैं भाई. हाँ, डर डर के रिफॉर्म्स करोगे, जैसे आप हाफ हार्टेडली लड़ाई लड़ो, है ना, तो आप हारोगे ना बेटा. समझ रहे हो? आप हाफ हार्टेडली पढ़ाई करो, आप हारोगे ना कि जीतोगे? बताओ. आपका ध्यान क्रिकेट में भी है कि भारत पाकिस्तान का मैच है, इतना इंटरेस्टिंग मैच, आपको कल मैच है और आप देखना चाहते हो कि ओलंपिक में कैसे गोल्ड मेडल जीता अपने भाला फेंकने वाले, क्या नाम था उसका, भूल, नीरज चोपड़ा ने, पॉइंट. और नेक्स्ट डे भारत आपका एग्ज़ाम है और आप भारत महिला टीम का हॉकी देख रहे हो कितने साल बाद, या पुरुष टीम का हॉकी देख रहे हो कितने साल बाद, कैसे ये वर्ल्ड लेवल पर ये फाइनल में पहुंच गए, सेमीफाइनल पहुंच गए. आर गेट फाइन. तो आपको तो बैलेंस बनाने की जरूरत है ना बेटा. बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो. तो इसकी जो कहानी है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर फोकस करता है कि हम जब तक अपनी इकोनॉमी में व्यापक परिवर्तन नहीं लाएंगे, हाफ हार्टेडली काम करेंगे, तो सक्सेस नहीं मिलने वाला. और इसलिए आज की गवर्नमेंट ने इवन इन द डिफेंस सेक्टर ऑल्सो इट अलाउज द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और इसका रिजल्ट दिखाई देगा आगे आने वाले सालों में, इसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव दिखाई देगा. आई एम वेरी मच होपफुल द वे द गवर्नमेंट इज प्लानिंग एंड गवर्नमेंट इज गिविंग द फ्री हैंड. एंड फर्स्ट थिंग इज, अगर आप कहीं भी किसी भी सिस्टम में करप्शन है तो सिस्टम कुछ भी पॉलिसी बना लो, सब बेकार हो जाएगी. बट प्राउडली आई कैन से दैट आवर PM इज वेरी ऑनेस्ट एंड इज रिजल्ट विल कम, रिजल्ट विल कम. कैन यू फाइंड? तो आपका ये तो आउट ऑफ वे हो गया टॉक. अब आते हैं लिबरलाइजेशन की बात करते हैं. ठीक है, लिबरलाइजेशन. ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, लिबरल एक वर्ड है, बिल्कुल कॉमन वर्ड है, जिसको हम कहीं कहते हैं कि पोलाइटनेस से जोड़ के देखते हैं, है ना, आसान चीज़ों को बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ ये वर्ड है. तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द withdrawing all the control and restrictions imposed on the economy by the government. अब इसको ऐसे समझो कि निशांत ने क्लास अटेंड नहीं किया. ठीक है, हमने कहा निशांत बेटा आपने क्लास अटेंड नहीं किया, तुमने कहा कि सर ऐसी कोई बात है इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया. हमने कहा अच्छा ठीक है बेटा, वर्क जो है कल तक सबमिट कर देना. निशांत ने सबमिट कर दिया. ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट. तो एक इट इज़ अ लिबरल अप्रोच. ये अलग बात है कि निशांत का एटीट्यूड बहुत बढ़िया है. ठीक है, अब एक इशू ऐसा भी हो सकता है कि आपने सबमिट नहीं किया, हाँ, और आपको क्या है, आपको स्ट्रिक्टली यू हैव टू सबमिट, अदरवाइज दिस दैट एंड दैट. ओके, तो ये सब करना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो रुकावटें हैं वो कह लो प्री LPG पॉलिसी के जो स्थिति थी इकोनॉमी की, उसमें बहुत सारे हर्डल्स थे. आपने 400 मीटर का रेस देखा होगा या 100 मीटर का रेस, उसमें हर्डल्स बनाए जाते हैं. ये हर्डल्स जो कि आप हर 100 मीटर या 50 मीटर 25 मीटर पर दौड़ने के बाद आपको एक बाधा आती है, उसको आपको जंप करना होता है, उसको क्रॉस करना होता है, तब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं. ठीक है, तो प्री जो LPG पॉलिसी का या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का या 1991 से पहले का जो स्थिति था वो फुल ऑफ हर्डल था. मेरे पॉइंट. तो लिबरलाइजेशन ने इसमें परिवर्तन लाने का प्रयास किया. तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द विड्रॉइंग ऑल कंट्रोल. अब ये कंट्रोल कोटा के रूप में हो सकता था, ये कंट्रोल लाइसेंस के रूप में हो सकता था,
ये कंट्रोल मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में हो सकता था, ये कंट्रोल इंपोर्ट के रूप में हो सकता था, ये कंट्रोल टैरिफ के रूप में हो सकता था, ठीक है, ये कंट्रोल बैंकिंग रिफॉर्म्स के रूप में हो सकता था कि उतने सारे रिफॉर्म्स नहीं हुए उससे पहले, बाद में रिफॉर्म्स बहुत सारे हो गए। तो लाइसेंस और कोटा का जो राज था वो इट वॉज इंक्रीजिंग द रेट टैपिज्म इन द इकोनॉमी, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अफसरशाही को बढ़ावा दे रहा था। तो लिबरलाइजेशन ने इन सारे कंट्रोल्स को दूर करने का प्रयास किया। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द विड्रॉइंग ऑल कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द इकोनॉमी बाय द गवर्नमेंट। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, 1991 24 जुलाई 1991। It was a very famous in the Indian economy. Liberalization in the industrial sector. Abolition of industrial licensing. Abolition, abolish कर देना, समाप्त कर देना इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को। लाइसेंसिंग हैज़ बीन abolished for almost all products except dangerous and harmful goods like alcohol, cigarettes, explosive, etc. Licensing is also not needed for increasing प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ पर एक जो रिस्ट्रिक्शंस था उस रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने का प्रयास किया गया। पहले क्या था, स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी। तो जब तक वो हार्मफुल है, अगर हार्मफुल है तो उस पर लाइसेंस स्टिल इट वाज रिक्वायर्ड। लेकिन जब हार्मफुल नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो कि ब्रेड की फैक्ट्री के लिए क्या लाइसेंस की ज़रूरत है भाई, पेन बनाने के लिए क्या लाइसेंस की ज़रूरत है ना, साइकिल से कौन सा नुकसान हो जाएगा, है ना, हार्मफुल तो है नहीं, लोगों का हेल्थ ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक मतलब डेंजरस नहीं था, एक्सप्लोसिव मटेरियल नहीं थे, कॉमन गुड्स थे, तो वहाँ पर लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया, ठीक है, ठीक है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत अब ख़त्म कर दी गई। डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। अब डी रिजर्वेशन, यहाँ से देखना, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया मतलब जो एरियाज़ पहले रिजर्व थे कि उसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही काम करेगा या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज काम करेगी, अब उन सारे चीज़ों को हटाया गया, रिस्ट्रिक्शंस। तो यहाँ पर देखेंगे, द गुड्स विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन ओपनड फॉर लार्ज स्केल यूनिट्स ऑल्सो, ठीक है। जिसमें पहले केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को काम करने के लिए अलाउ किया गया था, उनको ओपन कर दिया गया कि वो उसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी काम कर सकती है, ठीक है। आर यू गेटिंग पॉइंट? बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, नेक्स्ट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, ठीक है। कैपिटल गुड्स, यू नो, द गुड्स विच जनरेट्स फर्दर इनकम, उसको हम कैपिटल गुड्स के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने का फ्रीडम दिया गया, स्वायत्ता दी गई, इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते थे। ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन रिमूव्ड, उनको हटा दिया गया। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही आसान है, याद रखना है बस। विड्रॉल ऑफ प्राइस रिस्ट्रिक्शंस, द प्रैक्टिस ऑफ गवर्नमेंट फिक्सिंग द प्राइस ऑफ नेसेसरी गुड्स वाज स्टॉप्ड। जो आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमतें सरकार निर्धारित करती थी, उसको हटा दिया गया। अब क्या है, मार्केट फोर्सेस, ठीक है। मार्केट इज गिवन फ्रीडम टू डिसाइड प्राइसेस, मतलब क्या है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विल नाउ डिसाइड द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। हम आज देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स के बारे में और इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे आज के क्लास को। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, द रोल ऑफ आरबीआई हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। रेगुलेटर और फैसिलिटेटर, अभी मैं सोचो तो हम अभी इंस्ट्रक्शनल टीचिंग कर रहे हैं। मज़ा कब आता, जैसे हम क्लास में बोलते हैं, आपसे पूछते हैं, आप आंसर नहीं दे रहे हो, तो हम फैसिलिटेट तो करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट अलाउइंग मी टू वर्क एज अ फैसिलिटेटर, ठीक है। अभी हम जो जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ अ लेक्चर मेथड, और होना क्या चाहिए कि हमको आई मस्ट वर्क एज अ फैसिलिटेटर, कि मैं आप फैसिलिटेट करता, मैं आपको आपके अंदर के नॉलेज को निकालने का प्रयास करता, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता, आप रिस्पॉन्ड करते, ठीक है। तो ये हमारा फैसिलिटेटर का वर्क होता, जो कि एक टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है, बट इट नीड्स योर कोऑपरेशन चिल्ड्रन,
योर कॉपरेशन। आप जब पढ़ के आओगे लेसन को एडवांस में, ठीक है, आप उसके कुछ नोट्स बना लोगे, यस आई हैव टू हेल्प यू। मैं आपको बताता कि यहाँ से ये बच्चा पढ़ लो, वो बच्चा पढ़ लो, मैं आपको कहता हूँ कि आप ये पढ़ के एक वीडियो बना लो, तो आप वर्क नहीं सबमिट करोगे, तो हाउ कैन आई बिकम अ फैसिलिटेटर? समझ में आ रही मेरी बात? नॉलेज और आपके पोटेंशियल का यूज़ तभी होगा जब हम एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर पाएँ। If I am not working as a facilitator or you are not allowing me to work as a facilitator, it is a loss for both of us. मेरे लिए तो लॉस एज कि मैं जिस तरीके से आउटपुट देना चाहता था वो दे नहीं पाऊंगा, ये मेरा लॉस है, जिसमें ना तो फाइनेंशियल लॉस है मेरा, ठीक है। एक मतलब इस प्रोफेशन को लाइक करता हूँ इसलिए डिससेटिस्फाइड महसूस करूँगा। और आपके लिए, आप अपने पोटेंशियल को जितना एक्सप्लोर करते तो आप उतना ही ऊंचाई पर जाओगे, उतना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ही आपका ग्रोथ होगा। आर गेटिंग पॉइंट? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो रोल ऑफ आरबीआई हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ अ रेगुलेटर टू अ फैसिलिटेटर। पहले इंस्ट्रक्शनल रोल था, रेगुलेटर का मतलब ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, दैट इज अ व्हाट, रेगुलेटर रोल। फैसिलिटेटर रोल क्या है? उसको हेल्प करना, काम करने में हेल्प कर, ठीक है, मतलब डांट डपट कर काम कराने की जगह वो एक सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पर उनको रियलाइज हो जाए ये उन्हीं का काम है, ये उन्हीं के बेटरमेंट के लिए बातें हो रही है, ठीक है। तो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गिवन फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, ठीक है। उनको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस से बाहर निकालने की बात यहाँ हो रही है। इंडिपेंडेंट डिसीजंस, हमको लोन देना है तो हम लोन दे रहे हैं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं। हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे कितना चार्ज करना है ये हम डिसाइड करेंगे। जैसे मैंने होम लोन लिया, एक बैंक वाले ने मुझसे 11% का लोन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, हाँ, और थोड़ा बिल्डर का प्रेशर, ठीक है, और वही बैंक दूसरे को 6.9 भी दिया, फिर मैंने बाद में चेंज करा लिया, गेटिंग पॉइंट। अब मैं 6.90 ले रहा हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेटिंग पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बैंक कस्टमर टू कस्टमर, अभी आपके पेरेंट्स अगर लोन लेने वाले हैं तो ये समझने, आपको भी इसमें पार्टिसिपेट करना, आपको इकोनॉमिक्स के नॉलेज का यूज करना है कि आप निगोशिएट करो, समझ रहे हो? जितना ही निगोशिएट कर पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बैंक को फ्रीडम है कि वो कस्टमर से टू कस्टमर वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को वेरी करता है। आर गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग पॉइंट? ये जो उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उससे आपके कैसे रिलेशंस हैं, आपके ट्रैक रिकॉर्ड, आपका सिविल, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रीडम तो मिल ही रहा है बैंक को फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बैंक इज गेटिंग फ्रीडम, पहले ऐसा नहीं था। परमिशन वॉज गिवन टू स्टार्ट प्राइवेट बैंक्स, अब प्राइवेट बैंक को भी परमिशन दे दिया गया, HSBC, HDFC, ICICI, ठीक है, ये सब प्राइवेट बैंक। गवर्नमेंट बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, SBI, ठीक है। पहले हम लोग जैसे मैं बात करता था ना, पहले एम्बेसडर कार ही हुआ करती थी, बाद में बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई, जैसे मर्सिडीज बेंज से लेकर और बहुत सारी गाड़ियाँ। परमिशन वॉज गिवन टू स्टार्ट प्राइवेट बैंक, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर इज इंक्रीज टू 50%। देखो ये सब फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा और आपको याद नहीं होगा तो नहीं लिख पाओगे। बैंक्स आर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेस विदाउट द परमिशन ऑफ RBI। पहले परमिशन होता था, रेगुलेटर का वर्क हो गया, फैसिलिटेटर का वर्क क्या हो गया कि आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट लॉस को देखिए, आप उससे जो करना है कीजिए, ठीक है। बैंक्स आर गिवन, जैसे फादर का रोल क्या है घर में कि बेटा इस समय ये पढ़ो, दूसरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, दूसरे फादर क्या बोलेंगे, आपको जो पढ़ना है लेकिन इस टाइम के बीच में पढ़ना है बस, ठीक है। दूसरे फादर को क्या बोलेंगे, टाइम टेबल बनवा देंगे, ठीक है, और उस टाइम टेबल को आप फॉलो करो, ठीक है। तो फैसिलिटेटर का रोल क्या है कि वो हेल्प करना, फ्रीडम भी देना,
ठीक है, बैंक्स आर गिवन फ्रीडम टू सेट अप न्यू ब्रांचेज विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. आप लोगों के पेरेंट्स ने भी बहुत सारा फंड, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में, किसी एक बच्चे से मेरी चर्चा हो रही थी तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा. ठीक है, पेंशन फंड मतलब आप कुछ समय पैसा जमा करते जाते हैं और आपको रिटायरमेंट के समय में एक अमाउंट मिल जाता है. ठीक है, तो पेंशन के रूप में मिलता रहेगा. ठीक है, जैसे हमने भी ICICI का एक पेंशन फंड लिया. तो अगला हमारा सेशन होगा टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर. तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ. 1 घंटे की क्लास हो गई. थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय. आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. If you have a doubt, you can ask.